آئیے خدا کے نام کو مبارک کہیے. آئیے زوردار تالیاں روح القدس کے لیے بجائیں گے اور روح القدس کو ویلکم کریں گے. پریز گاڈ، ہالیلویا. خدا کے کلام میں سے جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے جو سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے ہولی اسپرٹ، روح القدس، پاک روح، اور علم روح القدس کی تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے. اور اس کا جو آج کا سرمن ہے ڈرنکنگ آف دا ہولی اسپرٹ، روح القدس کا پلایا جانا، آج کا سرمن ہوگا. اور میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے حوالہ نکالیے یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت. میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. اور ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت. کیونکہ ہم سب کو خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے. اور ایک اور ریفرنس میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے، یسایہ 58 باب اور اس کی 11ویں آیت. خدا کے کلام میں سے یسایہ 58 اس کی 11ویں آیت. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا، خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جماعت بولے آمین. شکریہ سا بیٹھ جائیں. خدا کے کلام میں سے ڈرنکنگ آف دا ہولی اسپرٹ، روح القدس کا پلایا جانا، اس کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے تعلیم دینے کو ہوں. روح القدس جس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہ تثلیث کا تیسرا قانون، اور یہ تثلیث یعنی باپ، بیٹا، روح القدس. ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، یعنی ہمارا خدا جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، اسے تثلیث کا خدا کہتے ہیں. جیسے باپ ہے، ایک باپ کا دور تھا، اسی طرح کرائسٹ کا دور، یسوع مسیح کا دور آیا. اور پھر یسوع مسیح جب آسمانوں پر جانے کو تھے تو اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور روح القدس تمہارے لیے بھیجتا ہوں، مددگار، پنیما، یعنی جس کا مطلب اسپرٹ، ہوا، قوت. اور یہ جو قوت ہے، یہ روح جو ہے، یہ پنیما جو ہے، گریک میں اسے پنیما کہتے ہیں، اسپرٹ، خدا کا روح. اور ایک ہمارا روح ہوتا ہے، ہمارے اندر کی باتیں جانتا ہے، اور ایک روح خدا کا روح جسے پاک روح کہتے ہیں، یہ خدا کی طے کی باتیں ایماندار کی زندگی میں ڈالتا ہے اور لاتا ہے گہرے بھید. اس لیے یہ ہمارا مددگار ہے، تسلی دینے والا، صلاح کار، بشیر اور مشورہ دینے والا، ایڈوکیٹ، وکیل، شفایت کرنے والا. یعنی گریک کا ایک لفظ ہے پیراکلیٹوس، یعنی جس کا مطلب پیراکلیٹ، ہیلپر، کمفورٹر، کونسلر، ایڈوکیٹ، انٹرسیسر، ایڈوائزر، پروٹیکٹر اور اسٹرینتھر. تو یہ سارے روح القدس کے تعلق سے، روح القدس کے یعنی وہ ہیلپر ہے، ہیلپ کے لیے ہماری زندگی میں آیا ہے. پہلا جو ہیلپر ہمارا مددگار ہے وہ کرائسٹ ہے، اور دوسرا جو ہمارا مددگار ہے جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کرائسٹ کی دعا کے ذریعے سے ہمارے پاس ہمیں دیا گیا. اور یسوع مسیح جب آسمانوں پر گیا تو سب سے پہلے جو یسوع مسیح نے کام کیا وہ روح القدس کلیسیا کے لیے بھیجا. تو اب روح القدس کا دور ہے، اس لیے روح القدس کے دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ روح القدس ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا. یسوع مسیح 3.5 سال تک، جب 3.5 سال کی ایج ہو گئی، اس کے بعد یسوع مسیح آسمانوں پر چلا گیا. مگر یہ جو روح القدس ہے، پونیما ہے، اسپرٹ ہے، ونڈ ہے، یہ ابد تک رہنے کے لیے ہمارے ساتھ آیا ہے.
यानी इस दुनिया के अंदर भी हमारी रहनुमाई करेगा, हमें गाइड करेगा, हमें सिखाएगा, हमारी हेल्प करेगा, और फिर अब तक इसने हमारे साथ रहना है। इसलिए ये रूह कुदस जो है हमारी जिंदगी में कभी रंजीदा होने ना पाए, ना तो इसके खिलाफ बोले। दुनिया के अंदर हर गुनाह की माफी मिल जाएगी। क्राइस्ट के खिलाफ, इब्ने आदम के खिलाफ कुफर बोलेंगे, माफी हो जाएगी। यहोवा के खिलाफ अगर कुफर बोलेंगे, माफी मांगने से माफी मिल जाएगी, वो भी माफी मांगने से मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। मगर अगर रूह कुदस के खिलाफ अगर कोई कुछ लफ्ज कह दिया, तो ना तो इस आलम के अंदर यानी इस दुनिया के अंदर माफी है, ना आने वाले आलम के अंदर यानी 1000 साल बादशाही के अंदर भी नहीं, और अब्दियत के अंदर भी नहीं। इसलिए बड़ी मुहतात होकर बोलिए, खादमों के खिलाफ मत बोलिए। कहीं ऐसा ना हो कि खादम कलाम रूह कुदस के जरिए से बोल रहा हो तो आप कह दें कि ये नापाक रूह के जरिए से बोलता है। तो अगर किसी ने कह दिया तो फिर उसकी माफी ना तो इस जहान के अंदर, वो कलीसिया के अंदर आता रहे, मगर उसकी माफी इस दुनिया के अंदर नहीं है, ना आने वाले जहान के अंदर। इसलिए बड़ा मुहतात होकर बोलिए, कोई ऐसा जुमला ना बोलिए रूह कुदस के खिलाफ। मगर फकीर फरीसी ख्यालों के अंदर रूह कुदस के खिलाफ बोल देते तो यीशु मसीह उनको पकड़ लेता। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई रूह कुदस के खिलाफ कुफर बोलेगा तो भाइयों माफी नहीं हो सकती। मेरे खिलाफ, इब्ने आदम के खिलाफ तो बोला जा सकता है, मगर आज का जो सरमन है, ड्रिंकिंग ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुदस का पिलाया जाना, इसके ताल्लुक से खुदा के कलाम में से बयान करूंगा। ये रूह कुदस हमें पिलाया गया है। रूह कुदस हमें, बोलिए, पिलाया गया है। तो अगर ये कहेंगे कि ये हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है, तो ये भी पिलाने के अंदर ही आएगा, पिलाने के मायने के अंदर ही। यानी रूह कुदस हमें गाइड करता, सिखाता है। ये जो परिमा है, ये स्पिरिट है, रूह पाक है, पाक रूह है, रूह कुदस है, ये हमें क्या करता है, पिलाया गया है। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, ईद क़याम के मौका पर यीशु मसीह लिखा है, खड़ा होकर यीशु मसीह खड़े हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो आए मेरे पास से। जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसमें से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। तो यीशु मसीह का ये रूह कुदस के बारे में। तो रूह कुदस हमें पिलाया गया है। तो रूह कुदस जो है, क्योंकि ईद फसा के मौका पर 3 ईदें वहां पर सेलिब्रेट की जाती थी। ये ईद क़याम के मौका पर एक तो ईद पेंतिकोस्त की ईद मनाई जाती थी इस्राइल के अंदर, और दूसरी जो थी वो ईद फसा की ईद, और तीसरी ईद क़याम मनाई जाती थी बनी इस्राइल के अंदर। और आज भी बनी इस्राइल के अंदर ईद क़याम मनाई जाती है। और इसके अंदर जो थे, क्योंकि जब खुदा ने मिस्र से बनी इस्राइल को निकाला तो फिर वहां पर खैमों के अंदर बनी इस्राइल रही, और जब बनी इस्राइल खैमों के अंदर ये तंबू नुमा घर बनाकर रही, खैमों के अंदर उन्होंने रहना शुरू किया। तो जब खुदा ने उनको मुल्क कलाम दिया, पक्के मकान दिए, हर चीज दे दिया, तो फिर भी खुदा ने कहा ये ईद मनाना। तो वो हर साल क्या करते थे, इस ईद को मैदानों में चले जाते, खैमे लगाते, और आज भी बनी इस्राइल इस ईद को, ईद क़याम को बनाते हैं खैमों के अंदर। फिर इस ईद के अंदर खैमे बनाते हैं, और फिर खुदावंद की ये ईद 7 दिन तक चलती थी। पहले दिन खास सबक, और फिर 8वें दिन जो आखिरी दिन होता था उसे खास सबक कहा जाता था। और ये 8वें दिन जब इसके अंदर नजरें, कुर्बानियां खुदावंद के सामने चलाई जाती थी, नजर की कुर्बानियां। नजर की कुर्बानियां क्या होती हैं, नजर सुनिए गौर से। नजर की कुर्बानियां ये होती थी कि जो खुदा ने आपको बरकतें दी हैं, अगर इसके अंदर जो है आटा भी है, फिर मैदा भी है, इसके बाद जितने फ्रूट हैं, फल खुदा ने खाने को बरकत के तौर पर दिए हैं, वो हर चीज इस ईद क़याम के मौका पर खुदा की हजूरी में लाते थे और नजर की कुर्बानियां गुजराते थे। और फिर जब आखिरी दिन लिखा है ईद फसा का स्पेशल खास दिन था, तो फिर लिखा है यीशु मसीह वहां पर आए, और वहां पर काहिन जो था वो पानी की सैक्रिफाइस गुजार रहा था। पानी के लिए भी शुक्रगुजारी की जाती थी, यानी ए खुदा तूने हमें पानी पीने को दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। ये नजर के तौर पर काहिन गुजरान रहा था, तो मौका के मुताबिक यीशु मसीह कलाम करते हैं। तो लिखा जब वो कुर्बानी गुजरान रहा था पानी की,
कह रहा था, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमें पानी पीने के लिए दिया। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, वहां पर आखिरी दिन बुलंद आवाज से पुकार कर यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, उसमें से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। आइए रूह कुदस के लिए जोरदार तारीफ करिए। ये नदियां जारी हो जाएंगी। रूह कुदस अगर पीने के लिए खुदा से मांगेंगे तो फिर भाइयों नदियां जारी करने के लिए रूह पाक आ गया है। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, ये रूह कुदस हमें पिलाया गया है। और फिर खुदावंद के कलाम में यहां पर हमने यशाया 58 बाब के अंदर रेफरेंस को देखा। यीशु मसीह ने भी ये रेफरेंस लिया। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, जैसा कि लिखा है, किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावंद तेरी रहनुमाई यानी तेरी हिफाजत करेगा, तेरी प्रोटेक्शन करेगा। और फिर लिखा है कि तू शराब बाग की इमारत होगा। तू क्या होगा? शराब बाग की इमारत होगा। यानी बाग के अंदर कितने दरख्तों के फल होते हैं, तेरे घर के अंदर हर किस्म की फल होंगे। तू खा भी लेगा मगर वो फल अभी भी रहेंगे। ये ब्लेसिंग है, बरकत है। ये खुदा ने बनी इस्राएल से कलाम किया और कहा कि तेरे पाकिस्तानों में यानी तेरे बाग जो है वो भरे रहेंगे फलों से। और ये ईद क़याम के ऊपर यही होता था कि जब वो खैमे बनाते थे तो हर चीज खाने वाली चीजें वो क्या करते थे, खैमों में भर लेते थे। और फिर खैमे के ऊपर क्या करते थे, टहनियां लगाते, हर किस्म के फ्रूट वहां पर लगाते थे। ड्राई फ्रूट जितनी बरकतें खुदा ने दी है वो अपने खैमों के ऊपर लगा देते। इस बात की तस्दीक करते कि खुदा ने हमें हर नेमत से मामूर किया है, हर बरकत हमें दी है। तो वो जो बरकत खुदा उनको देता था वो ईद क़याम के तौर पर, नजर की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के सामने लाते थे, गुजरानते थे। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि मैं क्या करूंगा, सदा तेरी रहनुमाई करूंगा। यशाया 58 बाब के अंदर। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर खुदावंद के कलाम में पढ़े यशाया 58 और उसकी 11वीं आयत के अंदर, हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा। आइए जरा मेरे साथ इस हवाले को निकालिए। यशाया 58 बाब उसकी 11वीं आयत। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा, खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। खुश्क साली में तुझे क्या करेगा? सैर करेगा। खुश्क साली यानी दुनिया के अंदर काल होगा मगर मैं तुझे खाने को दूंगा। दुनिया के अंदर जॉब नहीं होगी मगर तेरे पास जॉब होगी। दुनिया का कारोबार ठप होगा, बंद होगा, मगर तेरा कारोबार चलता रहेगा। ये खुदावंद ने कहा, मैं तेरी सदा रहनुमाई करूंगा। खुश्क साली में तुझे क्या करूंगा? खिलाऊंगा। दुनिया के अंदर खाना नहीं होगा, काल पड़े होगा, मगर तू खाना खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद ने कहा बनी इस्राएल से। और आज बिलीवर जो ईमानदार है खुदा उनसे भी कलाम करता है, मैं तेरी सदा रहनुमाई करूंगा, तुझे खुश्क साली में खाने को दूंगा। दुनिया के अंदर जैसे भी हालात हों, खुदा ने यह वादा किया है, मैं तुझे खाने को दूंगा। तो खुदावंद के कलाम में लिखा, मैं तो तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से ज्यादा है। तो जब मैं चिड़ियों को, जानवरों को, परिंदों को, हवा के परिंदों को खाने के लिए देता हूं, न वो बोते हैं न काटते हैं, तो तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। लिहाजा मैं खुश्क साली में तुझे खाने को दूंगा। और लिखा कि तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शूंगा। तेरी हड्डियों को, भाई हड्डियों के अंदर दर्दें नहीं होंगी। फिर जब रूह कुदस जिंदगी के अंदर होगा तो फिर खुदा कहता है तेरी रहनुमाई करूंगा, खुश्क साली में तुझे खाना दूंगा और फिर तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा। हड्डियां कमजोर नहीं होगी, हड्डियों से आवाजें नहीं आएंगी जब रूह कुदस जिंदगी के अंदर होगा। रूह कुदस जब पिलाया जाएगा, पी लेंगे, अंदर होगा, तो फिर हड्डियों को से देगा। तो जब हड्डियां कमजोर होती है तो इंसान फिर नीचे बैठा रहता है। हड्डियां टूट जाए ना, बंदा फिर ठीक नहीं होता बुढ़ापे के अंदर। मगर खुदा कहता है कि जिस उम्र के अंदर भी तू होगा, तेरी हड्डियों को जोर बख्शूंगा। हालेलुया। हड्डियों को कुव्वत दूंगा, ताकत दूंगा, नया बना दूंगा, जोर दूंगा अपना।
मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस तू सरा बाग की मानद होगा और चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। यानी इतनी बरकतें दूंगा तुझे, आमीन। तेरी रहनुमाई करूंगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा, खुश्क साली में तुझे खाना दूंगा और फिर तुझे पानी दूंगा, तेरे अंदर से चश्मे जारी कर दूंगा। हालेलुया। रूह कुदस भी इसके साथ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। पिला दूंगा रूह कुदस जो तुझे जरूरत होगी। लिहाजा तेरी हर तरह की फिक्र करूंगा। तू सरा बाग की मानद होगा, यानी घर के अंदर किसी किसी की कमी नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये चीजें भी बरकतें भी तुझे दूंगा और इससे बढ़कर रूह कुदस भी तुझे दे दूंगा। तेरी जिंदगी में चश्मे जारी हो जाएंगे। तो भाइयों, ये चश्मों वाली सरजमीन खुदा हमें बना देगा। हालेलुया। लिहाजा रूह कुदस जो पिलाया गया है, इसलिए यीशु मसीह ने क़याम के ऊपर लिखा, पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जैसे किताबे मुकद्दस में लिखा है, उसमें से पानी के जिंदगी के क्या है, चश्मे जारी हो जाएंगे। तो बकाशा की किताब के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में, आबे हयात के चश्मे जारी हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये चश्मे आबे हयात के जिंदगी में जारी कर देगा खुदा। ये रूह कुदस के जरिया से हमें ये चश्मे फूट निकलेंगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है यशायाह के सहीफा में कि मैं खुश्क जमीन पर नदियां जारी कर दूंगा। हालेलुया। नंगे टीले जो है उनको नदियां बना डालूंगा, चश्मे जारी कर दूंगा। और ये नंगे टीले जो है ये गैर कौमें, खुश्क जमीन, जो लोग खुदा से दूर लोग, बनी इसराइल को यशायाह की मार्फत कहा गया कि मैं तेरे अंदर से चश्मे जारी कर दूंगा। तो वो उन्होंने प्यास नहीं रखी रूह कुदस की। हालांकि फिर यीशु मसीह ने आकर 750 साल बाद, कितने सालों के बाद फिर वही कहा, रेफरेंस दिया। यानी जब नबी बोल रहा होता है तो फिर देखें पिछले रेफरेंस को। यीशु मसीह जब बोला तो यशायाह के सहीफा को लिया उसने, फिर जब आपको ही बयान किया कि अगर कोई प्यासा हो। बनी इसराइल ने प्यास नहीं रखी, मगर यीशु मसीह ने दोबारा कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो आकर पिए। जैसा कि किताबे मुकद्दस में लिखा है कि उसमें से पानी की आबे हयात की नदियां जारी हो जाएंगी। और लिखा है यीशु मसीह ने कहा, ये रूह कुदस के बारे में अभी नाज़िल नहीं हुआ था, ऑलरेडी पहले ही ये कह दिया। लिहाजा लिखा है कि मैं खुश्क जमीन पर नदियां जारी करूंगा, नंगे टीले जो है वो नदियां वहां पर पानी बरसाऊंगा। यानी कौम और गैर कौम के ऊपर रूह कुदस नाज़िल करूंगा। आमीन। फिर दरख्तों की मिसाल दी, सुनिए, जंगलों के दरख्त, लिखे हर किस्म के दरख्त जो पहाड़ों के ऊपर होते हैं। अब होता है जैतून का जो दरख्त वो पहाड़ों पर होता है, और चीड़ का दरख्त। फिर लिखा है जो मैदानों के अंदर दरख्त लगते हैं उनको इकट्ठा लगाऊंगा। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। सुनिए गौर से, ये मैसेज थोड़ा सा मुश्किल है, सुन लीजिए। लिखा मैं क्या करूंगा, सरा में से नदियां जारी करूंगा, खुश्क जमीन पर सोते फूट निकलेंगे, चश्मे जारी कर दूंगा। यानी मैं उन दरख्तों को एक जगह पर लगाऊंगा जो पहाड़ों पर होते हैं, मैं सरा में लगा दूंगा। आमीन। मैदानी जगहों पर लगा दूंगा। तो ऐसा नहीं होता, दरख्त जो होते हैं वो जो पहाड़ों के ऊपर होते हैं वो पहाड़ों में उगते हैं, जो जमीन कच्ची जमीन पर उगते हैं मैदानों में वो मैदानों के अंदर होते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं ऐसे चश्मे जारी करूंगा रूह कुदस के जरिया से कि जो पहाड़ों के ऊपर दरख्त होते हैं वो भी मैदानों के अंदर लगेंगे, इकट्ठे लगाऊंगा। आमीन। तो लिखा है ये दरख्त क्या करेंगे, ताल देंगे। अब देखिए दरख्त ताल कैसे देते हैं, जब हवाएं चलती हैं, आवाजें उनकी साउंड सुनिए। ये इंसानों की बात हो रही, कौम गैर कौम के ताल्लुक से, कि गैर कौमें भी आकर रूह कुदस को लेंगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए जोर से कर जाए। लिखा मैं चश्मे जारी कर दूंगा, नंगे टीलों से नदियां जारी कर दूंगा, खुश्क जमीन पर चश्मे फूट निकलेंगे। यानी गैर कौम भी जो है आज आकर यीशु मसीह को कबूल कर रही है। जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे रूह कुदस उनकी जिंदगी में काम करेगा। ये चश्मे, ये जिंदगी
अब हयात जारी हो जाएगी, हमेशा की जिंदगी उनकी जिंदगियों से भाई ये चश्मे जारी हो जाएंगे। समझिए इस बात को। लिखा है खुदावंद के कलाम में, लिखा है यीशु मसीह एक कुएं के अंदर गए, कुएं के पास चले गए और वहां पर सामरी औरत, लिखा है खाली मटका पानी का लेकर पानी भरने के लिए आई हुई थी। और यीशु मसीह ने कहा, तो उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, मुझसे मांगती, मैं तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी कर देता। हालेलुया, हालेलुया। यानी तू मुझसे मांगती, तू जानती, तो जब उसकी जिंदगी में फिर चश्मे जारी हो गए तो फिर भागी, अपने सारे इलाका के अंदर उसने शोर मचाया, मुझे चश्मा मिल गया है, क्रिस्टस मिल गया, मसीह मिल गया है जिसने मेरे अंदर की बातें खोल डाल दी है। हालेलुया। फिर उसने सारे इलाका को फिर लिखा मसीह के पास ले आए। ये चश्मे जारी हो जाते हैं जिनकी जिंदगियों में, वो रूहें जीतते हैं, ये चश्मे जारी हो जाते हैं, रूहों को जीतते हैं। फिर इसलिए कि मैं खुश्क जमीन पर चश्मे जारी करूंगा, मैं टीलों पर जंगलों के अंदर दस्त डाल देंगे। तो अगर जिंदगियों के अंदर चश्मे जारी हैं तो फिर रूहें जीतते हुए नजर आएंगे, लोगों को खुदा की हजूरी में लाते हुए नजर आएंगे। अब देखिए वो लेडी जो थी, औरत जो थी, सामरी औरत, गलत करैक्टर, मगर जब तौबा की, माफी मांगी, मसीह को कबूल कर लिया, तो जब चश्मा जारी हुआ तो रूहों को फिर जीत कर उसने सारा इलाका सामने ही जीत लिया। कोई सोल विनिंग करने वाला शख्स और लीडर यहां पर नजर आएंगे, मगर रूहें जीतते हुए नहीं, लोगों को खुदा की हजूरी में लाते हुए नहीं, मगर यहां पर तो भाइयों लिखा है कि मैं चश्मे जारी कर दूंगा। फिर आमीन। खुश्क जमीन पर दरख्त डाल देंगे, जैतून का दरख्त, फिर आस का दरख्त, हर किस्म का दरख्त जो आप देखते हैं, लिखा है इकट्ठे लगाऊंगा, कौम गैर कौम को एक जगह पर ले आऊंगा, और फिर रूह कुदस उनकी जिंदगियों में चश्मे जारी हो जाएंगे, रूह कुदस उनकी जिंदगियों में काम करेगा। और आज ऐसा ही हो रहा है कि लोग जो है मसीह को कबूल कर रहे हैं, और जो मसीह को कबूल करेंगे तो फिर ये रूह कुदस जो आएगा ये चश्मे बना देगा। हालेलुया। बंजर जमीनें सैराब हो जाएंगी। इसलिए ज़बूर की किताब के पहले ज़बूर के अंदर लिखा है वो उस दरख्त की मानद होगा, उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, उसका एक पत्ता भी नहीं मुरझा सकता। आमीन। फिर लिखा है मैं घास के अंदर, तुझे ज्यादा मकदार में होता है वहां पर लगते हैं ये बांस बैन, तो खुदा ने कहा मैं हरियावल के अंदर वहां पर लगाऊंगा तुझे, एक ईमानदार को वहां पर लगाऊंगा, घास के अंदर जहां पर क्या होती है, हरियाली होती है, वहां पर हर किस्म की बरकत होती है, वहां पर तुझे रखूंगा। हालेलुया। इसीलिए तो कहा मैं सदा तेरी रहनुमाई करूंगा। इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो धोखा देता है, वैसे ही कहेगा, मगर खुदा कहता है मैं सदा तेरी रहनुमाई करूंगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा, तू सराबे बाग की मानद होगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर से चश्मे जारी कर दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, हर किस्म की रूह कुदस तुझे दूंगा, जो अंदर चश्मा फूट निकलेगा और हर किस्म की बरकत होगी। खुश्क साली जाती रहेगी, गुनाह जाता रहेगा, कमजोरी जाती रहेगी, बीमारी जाती रहेगी, रोग जाते रहेंगे, क्योंकि जब ये चश्मा जारी हो जाएगा तो फिर दूसरों तक पहुंचेगा और दूसरे लोग भी खुदा की हजूरी में आकर रूह कुदस से ममूर होकर खुदावंद की प्रशंसा करेंगे, खुदावंद की सताइश करेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है ड्रिंकिंग ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुदस का पिलाया जाना। यीशु मसीह ने ईद क़याम के मौका पर बुलंद आवाज से चला कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो आए रूह कुदस को मुझसे पिए। तो आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये रूह कुदस पिलाया गया है, इसका मतलब रूह कुदस हमें सिखाता है, हमें दिया गया है, हमारा हेल्पर है, मददगार है, सलाहकार है, मशीर है, एडवोकेट है, वकील है, शफायत करता है, पैराक्लीट है, हमारी मदद के लिए आया हुआ है, दूसरा मददगार, तसलीस का तीसरा करूम, ये हमें दिया गया है। और जब हमारी जिंदगी में रूह कुदस है, पाक रूह है, तो फिर चश्मे जारी हो चुके हैं। हालेलुया। ये जो मैं बोल रहा हूं भाइयों, ये चश्मे ही जारी हैं। आमीन। ये चश्मे जारी है, तो देन आपकी जिंदगियों के अंदर भी रूह कुदस है, मौजूद है, चश्मे जारी है, तो आप यहां पर मौजूद हैं। आमीन।
शराब बाकी मानद है। हर किस्म की बरकत आपके पास है, हर किस्म की ब्लेसिंग आपके पास है, क्योंकि ये चश्मा आपने पिया है, आपको पिलाया गया है। रूह कुदस आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। और लिखा है रूह कुदस उस वक्त आ जाता है हमारी जिंदगी में जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। तो ये चश्मा रूह कुदस आ जाता है, ये फूट निकला है, ये दुनिया के अंदर भी हमारे साथ रहेगा, अब तक हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, ये हमें नहीं छोड़ेगा। आमीन। इसलिए फायदा उठाइए, खुदावंद की प्रशंसा कीजिए, रूह कुदस से ममूर हो जाइए। ये चश्मे जारी है, रूहों को जीतिए। खुश्क साली के अंदर जो दरख्त लगे हुए हैं उनको पानी दीजिए, कलाम सुनाइए, रूह कुदस से ममूर होकर खुदा की बातें सिखाइए। ये रूह कुदस हमें गाइड करता है, सिखाता है, पिलाया गया है। इसलिए हमें चश्मा बनना है, हम हैं ही चश्मे, क्योंकि रूह कुदस हमारी जिंदगी में आ चुका है। जिस तरह ईद क़याम के तौर पर काहिन क्या कर रहा था, पानी गुजरान रहा था। पानी गुजराने का मतलब कुर्बानी दे रहा था पानी की कुर्बानी क्या होती, लेकिन खुदावंद के हुजूर में वो नजर के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर। यानी जैसे, सुनिए जुमला, जैसे जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी के बगैर भाई आप जिंदा नहीं रह सकते। और पानी उस वक्त इंसान मांगता है जब उसे प्यास लगती है। आमीन। और पानी ही वो गुजरान रहा था, क्योंकि बनी इस्राएल के लोग पानी की अहमियत को जानते थे। इसलिए यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से क्या कहा, अगर कोई प्यासा हो, जैसे पानी की प्यास होती है तो पानी पिया जाता है, इसी तरह रूह कुदस की अगर प्यास होगी, पुकारेंगे, कहेंगे मुझे रूह कुदस चाहिए, प्यास होगी, तो फिर जब मांगेंगे रूह कुदस को तो वो हमें डाल देगा हमारे अंदर। हालेलुया, हमें पिला देगा। फिर चश्मे अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी के अंदर जारी हो जाएगी, अब हयात के चश्मे जारी हो जाएंगे। इसलिए रूह कुदस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह रूह कुदस पाक रूह हमें पिलाया गया है, हमारे अंदर डाला गया है, वो नाज़िल होता है, हमारी जिंदगी में है, मौजूद है। इसलिए आप हयात के चश्मे अब हमारी जिंदगी में जारी है। इसलिए रूह कुदस को कोई रजीदा करने ना पाए, वो दिया गया है, पिलाया गया है, हम पर नाज़िल हुआ है, पैराक्लीट है, हेल्पर है, कंफर्टर है, हमारी मदद करता है, हमारी शफायत करता है। हमें दुआ नहीं करना आती, मगर रूह कुदस ने क्या खुद आहें भर भर कर हमारे लिए शफायत करता है। आमीन। इसलिए ये हमारी जिंदगी में मौजूद है, ये पिलाया गया है, इसलिए हमें इससे फायदा उठाना है। हमें खुदावंद की वर्शिप करनी है, प्रशंसा करनी, रूहों को जीतना है। और अगर तो रूहें जीत रहे हैं तो फिर चश्मे जारी हो चुके हैं, फिर तो लिखा के नदियां जारी है। और अगर रूहें नहीं जीती जा रही, लोगों तक कलाम नहीं सुनाया जा रहा, इसका मतलब है आप बंजर जमीन है, नंगे टीले हैं, जो पानियों से दूर है, खुश्क जमीन है, खुश्क साली हमारी जिंदगी के अंदर है। तो अगर हमारी जिंदगी के अंदर चश्मे जारी हैं तो फिर इसका मतलब है हम पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि हम रूहें जीत रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, लोगों को खुदा की हजूरी में ला रहे हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये तो गैर कौमों के अंदर भाइयों अब चश्मे जारी हो चुके हैं। एक ईमानदार खुदावंद की प्रशंसा ना कर पाए, इसलिए बाइबल के अंदर सुनिए आखिरी हवाला जो हमने पढ़ा था खुदा के कलाम में, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, यानी गैर कौम और गैर कौम को एक खुदा ने कर दिया है। या ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी। ये रूह कुदस की सुनिए, जो चश्मे जारी हो चुके हैं, पिला दिया गया है। अगर रूह कुदस मौजूद है तो फिर आप ये इम्तियाज करना छोड़ देंगे, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी। इससे मुराद ना कोई गैर कौम रहा ना कोई कौम रहा, खुदा की नजर में यकसा जो मसीह को कबूल करेगा, फिर चश्मे जारी हो जाएंगे। हालेलुया। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, खुदा की नजर में सेम हो गया। और पौलुस औरत कलीसिया के अंदर जब रूह कुदस मौजूद है, आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस की नदियां जारी हैं, तो फिर भाइयों औरत मर्द का कंसेप्ट नहीं है मसीहत के अंदर। फिर ना कोई औरत ना कोई मर्द, ये सेक्स का ताल्लुक हमारी जिंदगियों में ना हो फिर, क्योंकि रूह कुदस के चश्मे जारी हो चुके हैं, रूह कुदस पिलाया गया है। ना कोई यूनानी रहा ना कोई यहूदी, यानी ना कोई गैर कौम ना कोई कौम, खुदा की नजर में सेम। ना कोई मर्द रहा ना कोई बोलिए औरत। इसलिए औरत भी
खुदा के कलाम को सुना सकती है, मर्द भी खुदा के कलाम को सुना सकता है, क्योंकि रूह कुदस के चश्मे जारी हो चुके हैं। खुदा की नजर में सेम है, औरत भी मर्द भी। इसलिए औरत भी गवाही दे सकती है, मर्द भी गवाही देता है। खुदा के कलाम को मिलाया गया है, ना कोई मर्द ना कोई औरत, खुदा की नजर में सेम है हम। इसलिए भाइयों, ना कोई औरत भी कलाम सुना सकती है, मर्द भी कलाम सुना सकता है। तो भाइयों, अगर जगह जगह का पानी पिया है, घाट घाट का, तो फिर उनकी नजर में फिर औरत मर्द लदा हो सकते हैं। मगर एक रूह कुदस जिसकी जिंदगी के अंदर है, पिला दिया गया है, रूह कुदस से ममूर है, तो फिर वो भाई इम्तियाज करेगा। तो फिर वो जिस्मानी शख्स है, रूहानी नहीं है, जिस्मानी शख्स, दुनियादार शख्स है। इसलिए लिखा है, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, ये चश्मे जारी हो चुके हैं भाइयों। आमीन। ये लेवल है, इस लेवल को पकड़िए रूह कुदस के। वो कहते हैं ये जूता लेकर ऊपर आ गया। भाई अब तो मसीह हमारे दिलों में रहता है, चर्चों में, बिल्डिंग्स में नहीं रहता। अब तो अंदर है, अब तो वो भाइयों हमारे अंदर है। अंदर को साफ करना है, लोग जूतियों के ऊपर और चीजों के ऊपर ही। तो मैं कह रहा हूं कि जब रूह कुदस के चश्मे जारी हो गए हैं, आबे हयात के चश्मे, नदियां जारी हो चुकी हैं, बढ़ते नजर हो चुकी है, रूह कुदस हमारी जिंदगियों में है। ना कोई औरत रहा ना कोई मर्द, दोनों ही खुदा की खिदमत कर सकते हैं खुदा की नजर में। खुदा भाई ये चश्मे औरतों की जिंदगी में भी जारी है और मर्दों की जिंदगियों के अंदर भी। रूह कुदस पिला दिया गया है। रूह कुदस भाइयों हर जिंदगी के अंदर आता है, कौम हो गैर कौम हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए कोई शख्स इम्तियाज करने ना पाए, अगर करेगा तो फिर वो दुनियादार है, वो दुनियादार है। खुदावंद की प्रशंसा कीजिए, खुदावंद की सताइश कीजिए, खुदावंद की खिदमत कीजिए, रूहें जीतिए, रूहों को लोगों के खुदा की हजूरी में लाइए, रूहें जीतिए। वो औरत देखिए, जब मसीह को कबूल किया, चश्मे जारी हो गए, तो उसने सोल मिली की, रूहों को जीता, और वो तमाम अपने इलाका को मसीह के पास ले आई। उसने कहा मुझे ख्रिस्तस मिल गया, यानी मसीह मिल गया है, रूह कुदस मिल गया है। आमीन। तो आप देखिए, रूह कुदस जब होगा तो फिर नदियां जारी हो जाएगी, फिर आप रूहों को जीतेंगे, मर्द औरतें हर बंदे को खुदा की हजूरी में लाएंगे ताकि वो जीते जाएं। हालेलुया। इसलिए रूह कुदस हमें पिलाया गया है, हमारे अंदर है, नाज़िल होता है, वो हमारी जिंदगियों में मौजूद है। इसलिए हमें खुदावंद की वर्शिप करनी, प्रशंसा करनी, खुदावंद के रूह से सीखना है, ताकि ये नदियां हमेशा जारी रहें, चश्मे जारी रहें। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो आकर पिए। जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, उसमें से पानी की नदियां, चश्मे, आबे हयात के चश्मे जारी हो जाएंगे। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए, अपनी जिंदगी पे वॉच करना शुरू कीजिए।